Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you to Yog Vashishta Study Group evening session in multilingual language. We do the discussion and discourse here in Marathi, Hindi, and English. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ स्टडी ग्रुप मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज मराठी, हिंदी, इंग्लिश के इवनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 5वें सत्र में पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मी सोमेश्वर आपल्या सर्वांचं योग वाशिष्ठ स्टडी ग्रुप संध्याकाळचं जे सत्र आहे, आज आपलं 5वं सत्र आहे, त्या सत्रामध्ये सर्वांचं स्वागत करतो। आपल्यासोबत आपले झूमचे पार्टिसिपंट्स आहेत। आपण हे सेशन रेकॉर्ड करतो आहे आणि हे युट्यूबवर अपलोड केलं जाईल आणि सध्या आपण फेसबुकवर सुद्धा लाईव्ह आहोत। तर झूमचे सर्व पार्टिसिपंट, फेसबुकचे सर्व व्ह्यूअर्स आणि युट्यूबचे सर्व व्ह्यूअर्स यांचं सर्वांचं पण आजच्या या सत्रामध्ये स्वागत आहे। तर रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं गुरुवंदना के साथ। आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करेंगे। लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले, ब्रीथ इन एंड लेट गो। एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन करें, गुरु से प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना करें, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति पे तैयार होने वाले इंप्रेशंस, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुमुक्षुत्व की राह पर चलने वाले हम सब मुक्ति की चाह रखते हुए उस चाह को भी गुरु चरणों में अर्पण कर यदि यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। खाली हो जाए, अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें और धीरे धीरे अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव, वेलकम बैक।
Let us begin. Yesterday we have seen that after completion of the pilgrimage travel tourism, Lord Rama comes back to his kingdom. Everybody, the entire kingdom, celebrate his arrival, and Rama continues his daily routine. After some time, it has been observed that Lord Rama is not interested in doing any activity. He is not eating properly, he is not sleeping properly, his entire body is becoming thinner and thinner, and he's not paying attention to even his regular duties and responsibilities. So looking at this, Dasharatha really gets worried, and he discusses the matter with Vashishta Muni. Vashishta Muni is someone who knows Lord Rama's incarnation and the purpose of his life. And he says if something has to happen, something big has to happen, there is always such indications of ups and downs. So there is definitely some root cause why Rama is behaving like this. While this discussion is going on, there is an arrival of a sage Vishwamitra. So Vishwamitra comes and he conveys his objective of coming to the court, that he would like to take Rama along so that he can complete his yajna, where the demons are creating a lot of havoc and they are not allowing him to do his ritual practices. He cannot even curse them because he is following some dharma. According to that, he cannot even curse them, he cannot even kill them. Otherwise, his ritual will not get completed. So he makes a demand. He proposed Dasharatha to send Lord Rama along with him. Now, Dasharatha, despite of giving a promise to Vishwamitra, now goes into the mode of fatherhood, and to him, Lord Rama is just a 15-year-old kid who has completed his education, and he just explains, he just expresses his worry that how can I send him? He has just completed his education. He has not even fought any big wars. How can he fought with all those demons, very big demons? That kind of worry he expresses. Then because of that, Vishwamitra gets little bit angry, and then Dasharatha tells him the real story. Look, Sage, I am ready to come with you. I can take all my soldiers with me, but please excuse me by taking Rama along with you. So after telling all these things, Dasharatha finally tells him, look, he is not even taking care of himself. Look at his body, how thinner he has become. And he's not even paying attention to his daily routines and responsibilities. How can he come and play and support you? So listening to this fact, Vishwamitra conveys that kindly invite Rama to the court. Let me talk to him. So when Rama comes to the court, he bow down to all these sages, and to bow down to his father Dasharatha, bow down to Vashishta Muni and Vishwamitra and all other dignitaries over there. So after saying that, Vishwamitra looks at him and he understands the whole story, and he gives an indication to Vashishta Muni that kindly talk to him what is going on. You know what he is. He has just forgotten the purpose of his life and he is behaving like this. Let us bring him back to the source. Let us give him a little bit of knowledge and Atmagyan so that he can come back on the thing. Now this Prabhu Ramchandra is also an incarnation of Lord Vishnu. So he is also aware about everything, but probably he's just acting so that jo sant hote hai, those rishi munis, they usually do not speak unless they have been asked for. So he knows that there is so much of knowledge hidden in those rishi munis, and just to bring that knowledge out of them, probably he's just doing all these things. We can look at it. This another viewpoint. But the fact is that the things are happening like this, and he is really having something going on in his mind, and he comes and in the court, and now he is ready. Now Vashishta Muni asked him that, tell us what is going on with you. Why are you doing like this? Are you not aware about the things? No? Tell us, please share what is going on inside you.
Now that point of time, Rama is ready to express the vairagya that dispassion he is experiencing in his life. Now when he is about to express this dispassion to everybody, now this news actually spread like a fire. Just like in our today's modern term, we can say, oh, news viral ho jati hai. It reaches to all the lokas, all the yakshas, kinnaras, and all the bhoot, pishach, devgan, all those, they just get together there to listen to Prabhu Ramchandraji talking about and dispassion. What a movement! That entire universe is focusing with the Pancha Prana, focusing there, keeping their 100% attention to what Rama is going to see about his dispassion. It's something which is very, very vital. Those who are walking on this path of spirituality, those who are walking on the path of this adhyatma, they are aware what is the importance of having a dispassion in life. So that is what is going to happen, and that is what we will see now today. So when Rama begins to share his dispassion to everybody, everybody is listening with a full attention there. Rama begins, "Oh sages, all those dignitaries, let me explain what is happening with me. When I happened to travel, I have observed many different people, their situations, their sufferings, what they are undergoing through. And despite of going through all this suffering, they seems to be attached to this entire small pleasures that they derive by earning money, by doing little bit of things here and there, and they seems to be happy doing that. How come they are not aware that all these things are a cause of root cause of misery? What they are doing, how come they are not aware about it? How come they can just keep on doing all these things again and again and again, and then try about it and grumble and complain about it? What is going on? I am really confused. No, I do not have any such interest in all this worldly matter what these people tend to follow. My intellect is not able to even comprehend why people behave like this. Even the people who are walking on this path, even they tend to do such things. No, are they not aware what is the impact of this? Are they not aware what sanskara it is creating on them? Are they not aware that they are going to get finished in no time? Are they not aware about the reality? They are just stuck with the things that is visible around them, and they are just completely submerged into it, into this day-to-day routine, mundane life. Such kind of expressions Rama expresses. And then he asks, how can one can do it? Even I'm thoroughly confused because of looking at all these things. I do not see any pleasure in this worldly matter. Oh dear sages, oh respected sages, with full honor and respect, kindly guide me. Kindly tell me, how can I get out of this situation? I'm thoroughly confused. And then he continues, and then he start explain his point to make its point more clear. He start talking about multiple things. We'll look at them one by one. कल हमने देखा कि जो अपने प्रभु रामचंद्र जी है वो ट्रैवल करके लौट के अपने किंगडम में आते हैं, सब लोग उत्सव मनाते हैं, और कुछ दिनों बाद वो अपने वैराग्य में चले जाते हैं, ना कुछ ठीक से खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ काम धंधा करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। उनका शरीर भी बहुत कृश होता हुआ दिखाई देता है। तो जो अपने राजा दशरथ है, उनको बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरे बेटे को ये क्या हुआ, ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि के सामने ये बताते हैं अपनी चिंता। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, वशिष्ठ मुनि तो त्रिकालदर्शी है, वो सब जानते हैं प्रभु रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, वो तो उन्हें तो सब पता होता है। तो वो बताते हैं कि कभी कुछ बड़ा कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले कि ये सारे अप्स एंड डाउन, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, तो जरूर इसके पीछे कुछ कारण है। ऐसा होते हुए वहां पे विश्वामित्र जी का
आगमन हो जाता है। विश्वामित्र जी अपना प्रयोजन बताते हैं कि मैं यहाँ पे रामा को यहाँ पे लेने आया हूँ, मुझे उनकी हेल्प चाहिए। वहाँ पे वो जो राक्षस गण है वो आके मुझे वहाँ पे मेरे यज्ञ में व्यत्यय डाल रहे हैं। यह सुनकर दशरथ राजा अपना चिंता व्यक्त करते हैं, मेरा छोटा बच्चा है, कैसे आपके साथ आएगा, अभी तो उसने कुछ युद्ध और नीति भी जानता नहीं है, ठीक से कुछ नहीं किया, अभी उसने सिर्फ उसका एजुकेशन ही पूर्ण किया है, उसको तो कोई प्रैक्टिकल अनुभव भी नहीं है। हाउ कैन ही कम टू यू? मैं आता हूँ आपके साथ, आप मुझे बोलिए, मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। फिर दशरथा उनको सत्य बताते हैं, देखिए वो उनकी ऐसी कंडीशन है, वो खुद को ही ठीक से संभाल नहीं पा रहे, वो आके आपकी क्या मदद करेंगे, उसकी वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ, आप कृपया उनका मार्गदर्शन करें। यह सुनकर विश्वामित्र कहते हैं कि राम जी को दरबार में बुलाया जाए। जैसे ये नौता मैसेज राम जी को मिलता है, राम जी दरबार में आते हैं और फिर वहां पे सबको आदरातिथ्य व्यक्त करके पूरी तरह से नमन करते हैं। एंड फिर वो जब क्षण आता है जब उन्हें पूछा जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो वो प्रभु रामचंद्र जी अपना वैराग्य वहां पे कथन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सुनकर ये जो न्यूज होती है, ये जो होती है, वो सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है। फिर सारे यक्ष किन्नर सारे जन पे भूत पिशाच सभी दृश्य दृश्य रूप में देवगण सारी अप्सराएं मिलकर सारे के सारे वहां पे आके वहां पे रुक जाते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी अपना वैराग्य कथन करने जा रहे। वे जानते हैं, जो इस अध्यात्म की मार्ग पे चलते हैं, उन्हें वैराग्य कितना इम्पोर्टेंट होता है वो जानते हैं। प्रभु रामचंद्र जी तो विष्णु जी के अवतार है, तो उनकी मुख से वैराग्य सुनने का यह क्षण कोई मिस नहीं करना चाहता। तो सब लोग आके वहां पे अपना पूरा का पूरा पंच प्राण, अपना पूरा अटेंशन, अपना फोकस देके वहां पे सुनने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और फिर प्रभु रामचंद्र जी अपना वैराग्य कथन वहां पे करते हैं। हे मुनिवर, हे डिग्नेटरीज, हे सारे अपने मुख्य अतिथिगण, मैंने अभी अभी अपना भ्रमण पूर्ण करके आया और मैंने जो देखा उससे तो मेरे होश उड़ गए। कैसे यह लोग कैसे अपने अलग अलग क्रीड़ाओं में मग्न है, कैसे ये संसार की दुर्दशा है, कैसे ये लोग अवेयर भी नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। डेली रूटीन में वही किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने से वही चीज किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर से उलझते रहते हैं। वही कार्य करते हैं, फिर वही रोते हैं, ग्रम्बल करते हैं, कंप्लेन करते हैं, निंदा करते हैं। ये सब मनुष्यगण क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में तो ये बात आती नहीं। ऐसे संसार में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? जो चीज मुझे थोड़ा सा प्लेजर देगी और लॉन्ग टर्म में मुझे वो मिजरी लाएगी, मुझे दुखी देगी, ऐसे कार्यों में मुझे कोई औचित्य नहीं है, मुझे यह करने में कोई मेरी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस तरह से फिर वो अपना वहां पे मन की स्थिति, प्रभु रामचंद्र जी की मन की स्थिति वहां पे वो बयान करते हैं। और फिर सबसे विनंती करते हैं कि कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे तो यह सब समझ में नहीं आता। कैसे यह लोग जानते नहीं है कि कुछ क्षण में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में ये निकलने वाले हैं। कैसे यह नहीं जानते कि यह शरीर यह कृश हो जाएगा, कैसे ये किस समय काल आके इनको अपने में समा लेगा, यह जानते नहीं है। फिर कैसे ये बिहेव कर रहे हैं, क्या यह जानते नहीं है? कैसे यह अपनी वासनाओं में उलझे हुए हैं, क्या यह नहीं जानते कि यही वासनाएं इनको दुख पहुंचाएगी? यह सब अपने अंदर की जो बात है प्रभु रामचंद्र जी वहां पे बयान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और उन बातों को फिर से डिटेल में उनको बताने के लिए अलग प्रकार के उनको उदाहरण देते हैं। प्रभु रामचंद्र जी जेव्हा आपलं भ्रमण पूर्ण करून आपल्या राज्यामध्ये परत येतात, त्या क्षणाला सगळे राज्यातले सगळी प्रजा एक आनंदाचा आणि उत्साहित उल्हासित वातावरणामध्ये ते सगळं आनंदमय वातावरणात ते आपला उत्सव साजरा करतात। काही दिवसानंतर प्रभू रामचंद्रजी यांचं जे वैराग्य असतं त्याच्यामुळे त्यांच्या जीवनामध्ये अनेक परिवर्तन घडून येतात। त्यांचं लक्ष लागत नाही खाण्यापिण्याकडे, ना त्यांना झोप लागत नाही, ना कोणती गोष्ट करण्यामध्ये त्यांचं मन रमतं। अशी परिस्थिती होत असताना स्वाभाविक राजा दशरथाला त्यांची चिंता लागते आणि त्यांची ही चिंता ते आपले वशिष्ठ मुनी यांच्याकडे व्यक्त करतात।
जेव्हा ते त्यांच्याकडे व्यक्त करतात तर वशिष्ठ मुनी तर त्रिकाळदर्शी असतात, त्यांना तर माहिती असतं राम कोण आहेत आणि त्यांच्या इथे पृथ्वी तलावावर येण्याचं, अवतार घेण्याचं प्रयोजन काय आहे. ते त्यांना समजावून सांगतात की काहीतरी त्याच्यामागे कारण नक्कीच असणार आहे. जेव्हा एखादी मोठी घटना घडणारी असते, तेव्हा सृष्टीमध्ये अशा थोड्या-थोड्या गोष्टी होत राहतात. तर त्यांच्या याच्या अशा वागण्यामागेही नक्की काहीतरी कारण असणार आहे. ही चर्चा चालू असतानाच तिथे विश्वामित्रांचं आगमन होतं. विश्वामित्र आपलं येण्याचं प्रयोजन तिथे सांगतात, की असं-असं मी यज्ञ करतो आहे. मला तुमच्या रामाला माझ्यासोबत घेऊन जाण्याची इच्छा आहे. कृपया त्यांना तुम्ही माझ्यासोबत पाठवा. ते मग ह्या दुष्टांचा संहार करतील आणि मग मला माझं यज्ञ पूर्ण करण्यामध्ये त्यांची मदत होईल. तर कृपा करून तुम्ही त्यांना माझ्यासोबत पाठवा. असं होत असताना दशरथ त्यांना आपली चिंता व्यक्त करतात. अजून तर माझा राम लहान आहे. त्याने आत्ताच कुठे त्याचं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे आणि कसा बरं मी त्याला पाठवू तुमच्यासोबत? हं. अजून तर तो खूप लहान आहे. त्याला तर युद्धाचा एक साधा अनुभव सुद्धा नाही. कसं तो हे सगळे राक्षसगण जे मोठे-मोठे पॉवरफुल राक्षसगण आहेत त्यांच्यासोबत लढाई करू शकणार? असं म्हणत आपली चिंता व्यक्त करतात आणि म्हणतात, की "मी तुमच्यासोबत यायला तयार आहे. तुम्ही मला सोबत घेऊन चला." असं म्हणत असताना विश्वामित्र म्हणतात, "तुम्ही तर मला वचन दिलं होतं, आता तुम्ही वचन पाळत नाहीये." आणि विश्वामित्राला राग येतो. मग त्यांना सत्य परिस्थिती सांगतात, "बघा ते राम युवराज रामचंद्र व ते तर आपला स्वतःचा पण व्यवस्थित ध्यान ठेवू शकत नाहीये. ना खात-पीत काही, ना कामात लक्ष घालत, ना त्यांना व्यवस्थित झोप येत. त्यांचं शरीर सुद्धा बघा किती कृश झालेलं आहे. ते अशा परिस्थितीमध्ये येऊन तुम्हाला काय मदत करणार?" सगळी परिस्थिती समजावून घेऊन विश्वामित्र त्यांना दरबारात येण्यासाठी बोलावतात. मेसेज रामचंद्रांना जातो. रामचंद्र दरबारात येतात आणि सगळ्यांना पूर्ण भक्तिभावाने नमन करतात. आणि मग तिथे वशिष्ठ मुनींकडे बघून विश्वामित्र त्यांना म्हणावतात, की तुम्ही त्यांना आता विचारा, त्यांना ज्ञान द्या. ते दोघे जण जाणत असतात, की काय चालू आहे, काय होतंय. तर मग तेव्हा तिथे जेव्हा प्रभू रामचंद्रांना त्यांना विचारलं जातं, की तुम्ही सांगा तुमच्यासोबत काय होतंय? काय चालू आहे तुमच्या मनामध्ये नक्की? आम्हाला तुम्ही सगळं समजावून सांगा. मग ह्या परिस्थितीमध्ये प्रभू रामचंद्रजी आपल्या मनाची अवस्था त्यांना तिथे समजावून सांगतात, की बघा आता मी भ्रमण करून आलेलो आहे आणि मी जी परिस्थिती इथे बघितली, जी आपले मनुष्य जे आहेत, त्यांची परिस्थिती बघितली, तर ते ह्या परिस्थितीमध्ये कशा पद्धतीने जीवन जगत आहेत. त्यांना कंप्लीटली अवेअरनेस सुद्धा नाहीये, की ते काय करतायत. पुन्हा-पुन्हा त्यांना हे दुःख त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होतं. पुन्हा-पुन्हा ते रडतात, ग्रंबल करतात, कंप्लेंट करतात, निंदा करतात. पुन्हा-पुन्हा तेच कार्य करत राहतात. हं. तरी सुद्धा त्यांना याची जाणीव नाहीये. त्यांना याची जाणीव नाहीये, की कधी हा काल त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल आणि कधी क्षणार्धात त्यांचं हे जीवन संपेल. तरी सुद्धा ते हे पुन्हा-पुन्हा हे कार्य तेच करत राहतात. मला याचं आश्चर्य वाटतं आणि मी याच्याबद्दल थोडा भ्रमित पण झालेलो आहे, की मला असं आयुष्य जगण्यामध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लाईफ लाइक धिस. कृपया हे मुनिवर, तुम्ही सगळेजण आत्मज्ञानी आहात. कृपया तुम्ही माझं मार्गदर्शन करा. मी कसा यातनं बाहेर पडू? मला आता मुक्तीच्या मार्गावर चालण्याची माझी इच्छा आहे. मला या सगळ्या जे रूटीन जे लोकं करत आहेत त्याच्यामध्ये माझा काहीही इंटरेस्ट नाही. आणि मग आपला पॉइंट व्यवस्थित सगळ्यांसमोर मांडण्यासाठी प्रभू रामचंद्रजी अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करतात आणि मग आपल्या वैराग्याचं पूर्ण तिथे वर्णन करतात. सो the dispassion of Lord Rama continues like this, and then one by one, step by step, he start explaining his dispassion. No, so he tells that look, all these people say that okay, this is I have this body. No, and then he start explaining this, compares this body with the tree, how this body is hollow and empty, and how trees is hollow and empty. No, how the different vultures and different creatures and different monkeys and all these things comes and sit on that tree. Similarly, this body also has multiple existence. It has its own mind. How that mind troubles the human. The human is not at all even aware about it.
Now, how this smriti comes into picture and clings on to negativity, and still the human is not aware about it. No, how these different enemies, kam, krodh, lobh, mada, moha, matsara, they come into picture. All this jealousy, this anger, how it is ruining the human's life. They are not at all aware about it. What is it that they think that this body is going to be permanent with them? Do they think, how can they say that they are this body? How come this human doesn't know that they are not just this body? Hmm? Likewise, they now start telling all the negative things about this body, so that it can bring. How come people are not aware about it? How can they are not able to realize this mind wants unlimited, but there all these five senses, panchendriya, they have a very limited capacity to give them the pleasure. No, but the mind wants unlimited, and when the mind wants unlimited and this panchendriya is not able to give them that, they suffer. No, they becomes very sorrowful. No, then they suffer out of it, they cry for it, then they express, grumble, all these things happens to them, again they fall for it. How come this human mind doesn't know that this entire ichha shakti, whatever their expectations are, what is this lalasa to get and happiness, about all these things, how these cravings are going to lead them to suffering? How come they are not aware about it? How can they continue to behave like this? Prabhu Ramchandra ji explains about this body. ना, प्रभु रामचंद्र जी इसकी निंदा करते हैं ना। प्रभु रामचंद्र जी फिर आगे बताते हैं पूरी तरह से अपने वैराग्य को समझाने के लिए। कहते हैं कि कैसे इस शरीर को ये लोग अपने सत्य मान लेते हैं। ये शरीर के जो पंचेंद्रिय है उनको प्लेजर देने की कैपेसिटी तो बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन मन को तो चाहिए होता है अगणित, अमर्याद, अनलिमिटेड। दिल मांगे मोर, किसी भी चीज को तो ये दिल बहुत ज्यादा चाहता है। कैसे ये मनुष्यगण इस बात को देख नहीं पाते? कैसे ये मनुष्यगण ये देख नहीं पा रहे हैं कि यह शरीर है, यह शरीर एक अपने अस्तित्व का एक छोटा सा अपना एक हिस्सा है। कैसे ये अपने शरीर को ही सत्य मान लेते हैं? क्या यह जानते नहीं है कि किस समय यह शरीर नष्ट हो जाएगा? दिन ब दिन, महीने भर महीने, साल भर साल, किसी भी समय काल इसको आके अपने अंदर समा लेगा। क्या यह लोग देख नहीं पाते? क्या ये शरीर का सत्य नहीं जानते? क्यों इसमें ये लोग ऐसे उलझे हुए हैं? यह बात मेरे समझ में नहीं आती है। कृपया हे मुनिवर, मुझे इसके बारे में, सत्य के बारे में अवगत कराए। कैसे यह लोग इस तरह से बिहेव करते हैं? कैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, यह जो इंसान के शत्रुपुंज है, जो इंसान के अपने शत्रु है, कैसे इनमें लोग उलझे रहते हैं? कैसे छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा कर देते हैं? कैसे छोटी छोटी बातों के ऊपर किसी और का जो सक्सेस हो यह देख नहीं पाते? कैसे जेलस फील करते हैं? कैसे दूसरों की यह लोग निंदा करते रहते हैं? क्या यह जानते नहीं है कि ये दुख की खाई में अपने आप को ढकेल रहे हैं? क्या ये लोग जानते नहीं है कि ये शरीर नश्वर है? इस तरह से अपने शरीर की निंदा करते हुए, इस देह की निंदा करते हुए प्रभु रामचंद्र जी अपने वैराग्य का वर्णन वहां पे करते हुए दिखाई देते हैं। प्रभू रामचंद्र जी तिथून पुढे आपलं वैराग्याचं वर्णन करण्यासाठी वेगवेगळे छोटे छोटे उदाहरण घेतात आणि आपल्या शरीराबद्दल तिथे वर्णन करतात। म्हणतात हे शरीर जे आहे, हे शरीर हळूहळू हळूहळू वार्धक्याकडे जात आहे। का हे मनुष्यगण जाणत नाही? का हे मनुष्यगणांना माहिती नाही की हे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हे जे आपले शत्रू आहेत ते त्यांच्या जीवनामध्ये कसे दुःख आणतात? का ह्या मनुष्यगणाला माहिती नाहीत की ह्या पंचेंद्रिय आहे, त्यांची आपल्याला सुख देण्याची जी ॲबिलिटी आहे, जी क्षमता आहे, ती खूप छोटी आहे ना? आणि आपल्या मनाला तर अमर्याद, अमाप, अनंत असं सुख पाहिजे असतं। का ह्या मनुष्यगणाला हे माहित नाही की हे आपलं अस्तित्व जे हे शरीर आहे, हे पंचेंद्रिय आहेत, हे त्याला ते सुख पूर्णपणे देऊ शकत नाही? का हे जाणत नाहीत? का हे अशा पद्धतीने वागतात? का पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतात? का पुन्हा पुन्हा त्याच आयुष्यामध्ये, त्याच गोष्टींमध्ये गुरफटलेले राहतात? का त्या क्षणिक सुखाच्या मागे हे पळत राहतात?
हे मला समजत नाही, हे सगळं बघून मी आश्चर्यचकित झालेलो आहे आणि माझ्या मनामध्ये हे द्वंद्व सुरू आहे की कसं मग मी मुक्तीच्या मार्गावर जाऊ. हे मुनिवर कृपया आपण सर्वजण माझं मार्गदर्शन करा, असं म्हणत प्रभू रामचंद्रजी या देहाची निंदा करतात. या देहाच्या असलेले लिमिटेशन्स आपल्याला समजावून सांगतात. पुढे जाऊन प्रभू रामचंद्रजी म्हणतात, देन Lord Rama continues to explain about this lust, about this Kam Vasana, about these different types of vasanas in life. So he explained, is this human is not aware about how this lust is taking over him. How this Kama Vasana, then there is a topic that he talks about, Stri Ninda. Here he is talking the negative. कल लेबर खाना खाना बोलते रह गए तो नहीं खाएंगे फेंक देंगे, छोड़ो आगे बढ़ा देते। Then he talks about all the negative things that actually overpowers this humanity. He talks about how come this man and woman, even though in the book if you read it all talks about only Stri Ninda, actually here they mean it's about male and female. No, he is talking about actually male and female. The both means the lust that is there which troubles this both genders. Here he is talking about that. He talks about are they not aware how this lust is overpowering them? Are they not aware how this lust takes over and they are not allowing the human to perform their duties when they are supposed to sit and do study, and their mind is hovering to all this attraction towards opposite sex? Are they not aware about it? Even they are supposed to do their routine work, they are supposed to do their official responsibilities. How this lust is overpowering them and it is not allowing them to do their duties. Are they not aware about it? How can they get attracted towards something which is going to give them very limited joy? Sparsha sukh jo bola jata hai. How can they this pleasure out of touch? How can they not aware about it? No, likewise, Prabhu Ramchandraji continues and he explains and he condemns the this lust and vasana which arise in the human, both the genders. Then he continues that people say that there is a pleasure, there is a happiness in the childhood. Many times we keep on saying, people saying that, oh, childhood was so good. It was the best period of life. How can you say like that, that this childhood is actually a pleasurable? I can see, if you see through my eyes, I see that this is the most vulnerable condition of the human being in his journey of this life. Now the kid is completely dependent upon his parent to feed him. The kid is completely dependent upon the parents to, if he wants something. If the parents do not provide him what he wants, all that he can do is just cry and express his anger. Momentarily, very momentarily, he will get angry about it if you do not give him what they want. How can we see this such a condition where you are completely dependent on others? How can we say that is the best period of our life? How can we say that that is the happy period of our life? Then Prabhu Ramchandraji continues, and when he says that when the child grows and becomes the youth, and we say that youth is the most beautiful period of someone's life, because that time you have a lot of energy, you are able to do, your body is also fit and fine, you are able to do whatever you want to do. But are we, can we not see that this, the moment this youth comes into someone's life, they are all getting attracted towards opposite sex, they are getting all indulged in this activities of lust. No, this entire lust, this entire attraction towards opposite sex overpowers the entire youth, and they are not able to concentrate, they are not able to sit and do study, they are not able to focus and do the work. How can we say that this youth is the most beautiful period of somebody's life? Look at them, how they are ruining their life. They are not at all following the rules of brahmacharya. They are not at all fine. They are very easily getting indulged into opposite sex. They start living together.
No, start enjoying life, not knowing that what would be the consequences of these things. How come they are not aware about it? How can I say that this is the best period of someone's life? Then he goes ahead and continues that, look at this body. It is day by day, day by day becoming crushed. It is becoming old. How can someone say that the old age is the best period of somebody's life? Look at them. Again, they are become dependent on somebody else. No, they have so many questions in their mind, whether their sons and daughter will they feed them or not, whether they will keep them with them or not. They feel so much of dependency. They are dependent on about many things on their children's. They expect that time the children doesn't have to give, doesn't have time to given to them. All these things hovers on this mind. No, look at even the body itself is not supporting them. This jara जो वार्धक्य जिसको बोलते हैं, the old age, that is overpowering them. No, any point of time when the call, this mrityu will come, the death will come and pick them up, they are worried about it. They are not sure about it, when their life is going to end, and they want to live more. Again, this mind wants to live more, forgetting the fact that this body has very limited time here. You are here only for a limited time frame. They forget this. How can they forget? How can I say that even the old age is the happy? So this entire life I see that there is no happiness here. How can I say that I want to leave this life? I'm not interested. I want to drop this body right now, and I just want to stay with myself. I'm not interested in living such life where I see that every moment there is only suffering, every moment there is only sorrow, only sorrow. अपना वैराग्य को बताते हुए प्रभु रामचंद्र जी अलग अलग प्रकार का उदाहरण यहाँ पे रखते हैं, अपने देह की निंदा करते हैं, फिर वो वहां पे जाके स्त्री निंदा, बाल्य निंदा, यौवन निंदा और वार्धक्य की निंदा करते हैं। उनका निंदा करने का प्रयोजन किसी के बारे में बुरा बताना यह तो नहीं होता है। उनका यहाँ पे कहने का प्रयोजन है कि कैसे यह मनुष्यगण इन सब बातों को देख नहीं पाते, असत्य को सत्य मानते हैं, इस शरीर को सत्य मानते हैं, कैसे अपने वासनाओं में फंस जाते हैं। इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी अपने वैराग्य का वर्णन यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, लोग कहते हैं आ हा, मेरा बचपन तो क्या बचपन था, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। कहते हैं कि बचपन द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ऐसा कहते हैं लोग। क्या यह लोग जानते नहीं है कि छोटा बच्चा होता है कैसे अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। उसको तो दूध पीने के लिए भूख लगती है, तब भी अपने आप को व्यक्त भी नहीं कर पाता, बोल भी नहीं सकता, उसको खाली रोने जैसा लगता है, वो खाली रो सकता है। कभी किसी चीज की कुछ इच्छा व्यक्त करता है, कुछ खिलौना चाहता है, कभी कभी माँ बाप लाके नहीं देते, तो ऑल दैट उनके पास एक ही उपाय होता है, रोना और गुस्सा करना। छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे मैं कैसा होता हूँ कि ये डिपेंडेंट जो लाइफ है किसी और के ऊपर, कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे सुखमय समय है। हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए रो देते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देते हैं। सभी प्रकार के लिए, खाने पीने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, सब चीजों के लिए हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर है। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर। कैसे हम लोग कैसे कह सकते कि ये सुख का पीरियड है। फिर प्रभु रामचंद्र जी ऐसे करते करते फिर बाल्य निंदा, स्त्री निंदा, यौवन निंदा और वार्धक्य की निंदा करते हुए यहाँ पे दिखाई देते। यहाँ पे निंदा करने का उनका एकमेव प्रयोजन ये होता है कि कैसे लोग इसको ठीक से देख नहीं पाते, असत्य को सत्य मान लेते हैं और कैसे इसमें एंटैंगल गुरफट जाते हैं। कैसे ये देख नहीं पाते कि यही इनकी दुखों का मूल कारण है। कैसे यह देख नहीं पाते कि एक छोटा बच्चा जवान हो जाता है और कैसे उसको वो काम वासना उसे सताती है, कैसे वो काम वासना में लीन होकर अपनी जो पढ़ाई करना है वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता, अपना जो काम करना है वो काम ठीक से नहीं कर पाता है, और कैसे अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसी में लीन हो जाता है।
ना किसी चीज का उन्हें ध्यान रहता है, ना खाने पीने का ध्यान रहता है, ना अपने काम का ध्यान रहता है। कैसे मैं कह सकता हूँ कि यह यौवन अवस्था बहुत ही सुंदर अवस्था है, जहाँ हम लोग पूरी तरह से इस लस्ट के अंदर, काम वासना के अंदर फंसते हुए दिखाई देते हैं। कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो वार्धक्य है, वहां पे लोग तो आराम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या लोग देख नहीं पाते कि कैसे जो वार्धक्य में फंसे हुए लोग होते हैं, उनके मन की अवस्था होती है। कब मृत्यु आके उन्हें लेके जाएगा, यह चिंता उन्हें अक्सर सताते रहती है। कैसे लोग देख नहीं पाते कि जो वार्धक्य में फंसे हुए लोग होते हैं, उनके अंदर वो चिंता होती है, क्या मुझे मेरा बेटा और बेटी मेरे पास आखिरी दम तक रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या मुझे वृद्धाश्रम तो नहीं भेज देंगे। यह चिंता उन्हें हमेशा सताती है। कैसे उनके मन में जो संस्कार, पूरे जन्म भर के संस्कार उनके मन के ऊपर होते हैं, और मन की दौड़ होती है, बिल्कुल और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, शरीर उनका साथ नहीं देता। मन के अंदर तो लगता है कि मैं सब कुछ खाऊं पीऊं, मौज मजा करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन उनका शरीर उनको साथ नहीं देता। जब शरीर साथ नहीं देता, अगेन वो दुख का अनुभव करते हैं। कैसे मैं वार्धक्य को कहूँ कि यह भी ठीक पीरियड है, आरामदायी पीरियड है। देखिए जरा इनको, किस तरह से यह लोग बहुत जरा खा करने के पीछे लग जाते हैं। बहुत ज्यादा, कई कई लोग तो इवन शरीर साथ नहीं देता, अभी भी उन वासनाओं में अटके पड़ते हैं ना। कई बार देखा गया कि ये जो वासनाओं के पीछे लगकर कई कई अलग प्रकार के चित्रों को, अलग अलग प्रकार के वीडियोस को देखते रहते हैं। शरीर तो साथ देता नहीं है, लेकिन मन से ही सब कुछ करना चाहते हैं। आजकल तो दिखाई देता है कि लोग तो फोन के ऊपर भी वासनाओं में अटक जाते हैं। किसी को फोन करते हैं, शरीर साथ नहीं देता, और बस सुनते सुनते ही वासनाओं में अटक जाते हैं। क्या यह लोग देख नहीं पाते कि उनका शरीर कृश हो गया है, यह शरीर उनको साथ नहीं दे रहा है? क्या यह, इस दुख के कारण को लोग पहचान नहीं पाते? यह देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और यदि जीवन के पूरे अंग में मुझे यही दुख और दुख, सफरिंग और सफरिंग ही यह स्थित है, तो बताइए मुझे यह जीवन जीने में कैसे रस आएगा? आप कृपया करके मुनिवर मुझे यह ज्ञान दीजिए, मेरा यह जो भ्रम है, मेरा जो यह कंफ्यूजन है, कृपा करके दूर कीजिए। कैसे मैं इस आयुष्य को जीने में इंटरेस्ट दिखाऊं? मुझे यह जीवन जीने में अभी कोई रस नहीं बचा है। बस मैं अपना देह त्याग करके अपना अपना छोड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से अपने वैराग्य को प्रभु रामचंद्र जी उनके सामने व्यक्त करते हैं, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे मुनिवर कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे इससे बाहर निकालें। प्रभू रामचंद्र जी आपलं वैराग्याचं वर्णन करताना सांगतात की हे मुनिवर, बघा हे सगळेजण कशा पद्धतीने म्हणतात, देहाची निंदा करतात, तिथे स्त्री निंदा करतात, बाल्य, यौवन आणि वार्धक्य याची निंदा करतात. हम्म? कालाचं तिथे वर्णन करतात की कसा काल जो असतो तो आपल्याला कोणत्याही क्षणी, क्षणभर क्षण आपल्याला तो काल आपल्याकडे खेचत आहे. कधी कोणाचा मृत्यू होईल हे सांगता येत नाही. कसं काय माणूस असा बिनधास्त निर्धास्तपणे जीवन जगू शकतो? कसं काय त्याला हे सत्य कळत नाही, असत्य जे आहे त्यालाच सत्य मानून कसा त्याच्यामध्ये मानव फसत जातो? मला खरोखर याचं आश्चर्य होतं. अनेक जण असं म्हणताना दिसतात की आपला जो बाल्यकाळ असतो तो खूप सुखाचा असतो, आनंदाचा असतो. का हे मनुष्यगण बघू शकत नाही की बाल्यकाळात तो छोटस बालक, ते बेबी कसं सर्व निर्भर असतं. इव्हन त्याला भूक लागलेली असते, पण जोपर्यंत ते बाळ रडत नाही तोपर्यंत त्याला त्याची आई पण दूध देत नाही. त्याला सगळ्या गोष्टींसाठी एकतर त्याला रडावं लागतं किंवा राग व्यक्त करावा लागतो. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये ते रडू लागतं, छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये ते राग व्यक्त करू लागतं. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी आपल्या मोठ्यांवर ते डिपेंडंट असतं, त्यांच्यावर निर्भय असतं. अशा ह्या दुसऱ्यांवर आश्रयित जीवनाला मी कसं सुखकर मानू बरं? कसं मी म्हणू की हे बाल्य जे जीवन असतं ते सुखकर आहे? मला तर याच्यामध्ये काहीही सुख दिसत नाही ना. हे तर फक्त दुसऱ्यावर निर्भय, दुसऱ्यावर आश्रित असलेलं जीवन जगण्यासारखं झालं. त्याला मी सुखकर मानू शकत नाही. बरं, तुम्ही पुढे म्हणता थोडा मोठं झाल्यावर त्यांना त्यांचं शरीर वाढतं, त्यांच्यामध्ये शक्ती येते.
पण काय ह्या मनुष्याला दिसत नाही की जसजसं आपलं शरीर थोडं वाढतं आणि टीनेजर आणि युथ मध्ये हे शरीर येतं, यौवनामध्ये हे शरीर येतं आणि कशा काम वासना त्याला आपल्या विळख्यात घेतात. काय हे मनुष्यगण बघू शकत नाहीत की कसे काम वासनेमध्ये लीन झालेले तरुण कसा आपला अभ्यास करणं सोडून देतात, आपल्या लक्षापासून दूर भटकतात. काय हे तरुण तरुणी बघू शकत नाहीत की कसं हे काम वासना त्यांना हळूहळू आपल्या लक्षापासून दूर नेतं, आपल्या कामापासून दूर नेतं, आपल्या रुटीन पासून त्यांना दूर नेतं. त्यांचं कामामध्ये लक्ष लागत नाही, त्यांचं अभ्यासामध्ये लक्ष लागत नाही. कसं मी या यौवन काळाला सुद्धा सुखकर म्हणून जिथे ते पूर्णपणे वासनेच्या आहारी गेलेले आढळतात. मला तर यामध्ये खूप आश्चर्य वाटतं. मला तर ही गोष्ट समजत नाही. म्हणे पुढे जाऊन तुमचं जसं जसं तुमचा काळ पुढे जातो, जसं जसं तुम्हाला वार्धक्य येतं, तुम्ही म्हातारे होता, तेव्हा सुद्धा असं म्हणतात लोक आराम करताना दिसतात. मला तर काही लोक आराम करताना दिसत नाही. त्यांचं अजूनही त्यांचं शरीर कृश झालेलं असूनही त्यांच्या मनामधल्या अतृप्त इच्छा अजूनही तशाच अतृप्त आहेत. कारण या मनाची ओढ असते, अमर्याद त्याला पाहिजे असतं आणि त्यांचे पंचेंद्रिय त्यांना परिपूर्णतेने त्यांची इच्छा पूर्ण करू शकत नाहीत. ह्या मनामध्ये अतृप्त इच्छा राहिलेल्या असतात. त्या इच्छापूर्तीकडे त्यांचं मन धावतं, पण त्यांचं शरीर आता त्यांना साथ देत नाही. कधी हा मृत्यू ओढवेल आणि कधी मला घेऊन जाईल याची कल्पना त्यांच्या मनात येऊन त्यांच्या मनामध्ये भय निर्माण करीत असते. माझी मुलं, माझे मुलगा मला वागवतील की नाही या चिंता सतत त्यांना भेडसावत असतात. शरीराची साथ नाही, मनामध्ये चाललेले कोलाहल, संपूर्ण आयुष्यामध्ये केलेल्या कर्माचे जे त्यांच्यावर संस्कार झालेले असतात, ते संस्कार त्यांना आता सुटत नाहीत. नवीन काही शिकायची इच्छा होत नाही. नवीन काही शिकायला गेलं तर मागचे जे इम्प्रेशन्स असतात त्या नवीन गोष्टी त्यांना शिकू शकत नाहीत. आणि मग असं असताना मी बघतो की अनेक जे वार्धक्यात फसलेले लोक आहेत, विनाकारण गंबल करत बसतात, रडत बसतात, कंप्लेंट करत बसतात आणि विनाकारण दुःख व्यक्त करत स्वतःलाही त्रास देतात आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना पण त्रास देतात. कसं बरं मी ह्या वार्धक्याला म्हणू की हे वार्धक्य सुखमय आहे? मला तर हे संपूर्ण जीवनामध्ये कुठेही सुख दिसत नाही किंवा जे सुख दिसतं ते फक्त क्षणिक आहे. अशा ह्या क्षणिक सुखाच्या मागे धावून मी जो परमानंद, जे चिदानंद स्वरूप मला ज्याच्यामध्ये लीन व्हावंसं वाटतं, त्या स्वरूपामध्ये मला आता स्थिर व्हावंसं वाटतं. ते सुख सोडून मी ह्या क्षणिक सुखाच्या मागे कसा बरं धावू? हे मुनिवर, कृपा माझ्यावर कृपा करून मला मार्गदर्शन करा. कसं मी ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये न फसता जे चिदानंद स्वरूप आहे, जे मुक्तीचा मार्ग आहे, जो मोक्षाचा मार्ग आहे, तो मला आता मार्गक्रमण करावंसं वाटतं. मला तर असं वाटत आहे की मी या देहाचा त्याग करून माझं आयुष्य इथे संपवून टाकावं. हे असलं आयुष्य जगण्यामध्ये मला काहीही रस नाही. मला याच्यामध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही. अशा प्रकारे सुंदर वर्णन करत प्रभू रामचंद्रजी आपल्या वैराग्याचं वर्णन करतात. कदाचित असा कोणी असेल ह्या जीवनामध्ये की ज्यांनी प्रभू रामचंद्रांचं वैराग्य ऐकलं आणि त्याच्या मनामध्ये वैराग्य उत्पन्न झालं नाही. There cannot be anybody in this entire world who listens to this dispassion of Lord Rama and that dispassion is not born in them. No? If it is not done in them, we can just mercy on those people. हम लोग ये प्रभु रामचंद्र जी का जो वैराग्य और उसका वर्णन सुन के यदि थोड़ा भी अपने अंदर अभी वैराग्य नहीं आया है, अभी भी अपना मन इन सब चीजों के पीछे दौड़ रहा है, तो ऐसे लोगों की हम लोग सिर्फ कीप कर सकते हैं. तो इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी अपने सारे प्रश्न वशिष्ठ मुनि इनके सामने व्यक्त करते हैं और उसका उत्तर वो चाहते हैं. तो फिर आज का यह समय अपना समाप्त हो गया. 9:05 हो गए. यह समय आपका है. This is your time to ask any questions. This is your time to express yourself. Whatever you have been listening, whatever you have been reading, I would like to hand over this session to you, and you can kindly express yourself. Thank you so much for patiently listening to all these things. Jai Gurudev. We'll begin with today's session with one of our coordinator for evening, Sangeeta ji. Sangeeta ji, kindly express yourself. Thank you, Someshwar ji.
That was beautiful. The way you have taken it up is so clear, exact. Yesterday it was the quote ka scene, today is the Vairagya ka scene. So it is just like, it's gone in our head. It's imbibed now. Yes, the way Rama, describes this passion, and it is a truth, like, hearing all this, if one doesn't has that dispassion in him, matlab we should have a mercy on him. It's like that. So beautifully described. Besides all what you said, it is, he has some questions regarding the wealth and regarding the egoism, the ego, all these also questions are coming up, which he has no answer for it. He's searching for those answers. Yeah. So later on, we are going to see how he get those answers. So it's very interestingly you have put it. I would say, this should keep on, going on. Nobody wants to sleep also so early. Are you all with me? Raise your hands then. See, it is so, भगवद गीता में बोलते हैं कि वो तेल धारा सदृश होना चाहिए, it is exactly like that, exactly. So all the best to you, and really I'm very happy that you have taken up like this. Thank you for showing us the way how to go ahead. Thank you very much. Jai Gurudev. An order, and this is an blessings from the Gurudev that we have to read Yoga Vasishtha, we have to go through it. Especially he says in the night time when you go to bed before going to do this. So it is his sankalpa that is manifesting through you, to Sachinji, through all of us who are all here. Sachinji, would you like to say a few words? बहुत ही एक्सेलेंट सेशन रहा ये। सोमेश्वर जी ने मतलब ये वही मैं प्रार्थना करूंगा कि ये कंटिन्यू करे, और वो जितने मेहनत कर रहे हैं ये सब लोग हेटेरोजेनस क्राउड को पहुंचने के लिए, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। और ये मैं वैराग्य के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये जो राम को वैराग्य जो आया वो कुछ नहीं है इसके वजह से नहीं, जो है उसके वजह से आया। तो आजकल जो लड़कों को फ्रस्ट्रेशन आता है या बाकी जो आता है, तो वो वैराग्य नहीं है, वो टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन रहता है। वैराग्य मीन्स यू हैव थॉरली थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, एक मैच्योरिटी उसके पीछे रहता है। तो ये वैराग्य हम गौतम बुद्ध के वैराग्य के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने देखा, क्योंकि ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको वो पूरे प्रोसेस से जाने के मतलब बचपन से वो वार्धक्य तक जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट फ्रॉम अदर्स लाइव्स। तो उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये रियली मतलब इम्पोर्टेंट है। और मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेज टुवर्ड्स नॉलेज। जब तक आप सभी में मतलब आप इन्वॉल्व नहीं होते, अपने आप को अलग देखते हैं और अपने अनुभव से, अपने जीवन से सीखते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। मैं एक छोटी सी एक कहानी यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। एक गांव में एक फार्मर रहता था, और वो डेली अपने फार्म में जाके काम करता था, वापस आता था, और सीधा साधा अपना जीवन चल रहा था उसका। तो उसके गांव में एक साहूकार था, और उसने मतलब उसको बहुत दिन उसने काम करने के बाद उसने कुछ उसको डिस्पैशन हो गया, और वो अपने ही खेत में वो रहने लगा। अपने ही घर उधर बनाया, और वहीं पे वो कुछ नौकर चाकर रख के वो उधर डिस्पैशन करके एक संन्यास लेके उधर वो रहने लगा। तो जब वो काम पे आया शाम को थक के अपने घर पे, तो उसकी बीवी ने उसको बताया, पत्नी ने उसको पूछा कि आपने सुना आज एक साहूकार थे गांव में, उन्होंने संन्यास ले लिया है, और वो अपने खेत में कुछ नौकर चाकरों के साथ में रह रहे। तो वो फार्मर थोड़ा हंसा, और वो बोला कि ये कोई संन्यास नहीं होता है।
तो और वो अपने काम पे लग गया। तो उसकी पत्नी उसको बोली कि नहीं आप बताओ ये सन्यास कैसे होता है। तो उसने थोड़ा और कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर वो पत्नी उसको बार बार बोलने लगी, कैसे तुम सन्यास कैसे होता है, कैसे ये होता है। तो उसने क्या किया, वो बोला देख अभी कैसे सन्यास होता है मैं अभी बताता हूँ। तो उसने अपने कपड़े उतार दिए, सब ये ले लिया, एक हाथ में काठी ले ली और वो बोला इसे कहते हैं सन्यास। और वो जब घर से बाहर गया तो वापस आया ही नहीं। तो ये जो होता है वो उसने अपने कर्म से, अपने एक्शन से दिखा दिया कि कैसे सन्यास होता है। ये माइंड का मतलब ये है, डिटर्मिनेशन है। और वो सन्यास उसने लिया। लेकिन हमारे इसमें सब कुछ जो भी है वो मन से ही करना है। कुछ जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप जाओगे जंगल और वहां पे ये करोगे। वहां पे भी आपके माइंड में वही इच्छाएं रहेंगी, वही वासनाएं रहेंगी, वही सब रहेगा। तो दैट इज नॉट प्योर संन्यास। वैराग्य इज यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर माइंड, क्योंकि ये सब खेल तो माइंड से ही चालू हुआ है ना। तो माइंड से ही सब ड्रॉप करना जरूरी है। बस इतना ही मुझे करना था। Thanks. थैंक यू सो मच सचिन जी, कितना ब्यूटीफुली सचिन जी ने यहाँ पे व्यक्त किया, इतने बहुत अच्छे से हमें समझाया। धन्यवाद सचिन जी। लेट मी टेल यू सचिन जी's बैकग्राउंड. सचिन जी is a very learned person. He has read through all many scriptures, Bhagavad Gita, Yoga Vasishta, and many other Brahma Sutras and all that. Now he has gone through all these things, and when you listen to him, you can feel that knowledge in his talk. So it is worth listening to such संग. इसको बोलते हैं ना साधु संग. That point will come when we talk about moksha ke char dwar. So it is our saubhagya that we have people like Sangeeta ji, Sachin ji in our life, and they are sharing their experience with us. We are really grateful to you, Sachin. मैं भी एक सादा सिंपल साधक ही हूँ, आपकी तरह ही चल रहा हूँ ये पाथ पे, और कुछ ज्ञान आपके पास से सब साधक परिवार से ले रहा हूँ। बस मैं कुछ, बाकी कुछ नहीं हूँ। थैंक्स। ये सचिन जी का बड़प्पन है, दैट वो अपना वेरी पोलाइटली और नम्र होकर अपने आप पे यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद सचिन जी, थैंक यू सो मच। है ना, बहुत ही बढ़िया पॉइंट यहाँ पे सचिन जी ने व्यक्त किया है कि guys don't get confused with depression. Na? Depression is something different and vairagya is something different. vairagya का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं. vairagya means what? राग means those विषय. वैराग्य मीन्स जो वहां पे विषयों से मिलने वाला जो प्लेजर है. विषय माने कौन से? नो, स्पर्श सुख हो गया, नो खाने का टेस्ट हो गया, वो टेस्ट वाला सुख हो गया. सूंघते हैं हम लोग, वो सूंघने का सुख हो गया. सुनते हैं, सुनने का सुख हो गया. एंड जो हम लोग देखते हैं, जो अपना देखने का जो सुख है, ये जो 5 विषय होते अलग अलग पंच इंद्रियों से, जो पंच शक्तियां, पंच 5 सेंसेस अपने यहाँ पे काम करते हैं, एंड उससे मिलने वाला सुख, उसको यहाँ पे राग कहा गया है. और इस राग से मुक्ति, इस राग को छोड़ देना, वो यहाँ पे वैराग्य कहा गया है. तो कितना बढ़िया सचिन जी ने हमें बताया कि ये करने के लिए, ये वैराग्य का अनुभव करने के लिए आपको कहीं पे जंगल या में या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है. बिकॉज ये राग और ये विषय तो वो वहां तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. So it is by living here in this life, यह जीवन जीते जीते इन रागों को दूर करने की प्रक्रिया, इस स्थिति में अपने आप को लेके जाने की प्रक्रिया को ही डिस्पैशन कहते हैं, को ही इसको वैराग्य करते हैं. डिटैचमेंट इज नॉट, डिस्पैशन इज नॉट अबाउट ड्रॉपिंग योर कर्मास, इट इज अबाउट ड्रॉपिंग द fruits of that karma, and it is dropping the cravings of that karma. वैराग्य जे आपल्याला इथे समजावून सांगितलं सचिनजींनी. वैराग्य माने काय, आपल्या ज्या वासना ज्या आहेत, ह्या पंचेंद्रियामधनं ज्या उत्पन्न झालेल्या 5 विषय, त्यांना विषय म्हटलं गेलेलं आहे. 5 विषय, त्या विषयामधनं उत्पन्न झालेल्या ज्या वासना आहे, ती सोडण्याची प्रक्रिया म्हणजे वैराग्य, त्यांना राग म्हटलं गेलेलं. आणि वैराग्य माने ह्या सगळ्या वासनांपासून मुक्ती, म्हणजे मग तुम्ही वैराग्यामध्ये आला.
याच्यासाठी तुम्हाला कुठे दूर काही जंगलामध्ये किंवा हिमालयात पळून जाण्याची गरज नाहीये, कारण की हे सगळे विषय तुमच्यासोबत तिथे पण येणार आहे. इनफॅक्ट तुम्हाला तिथे जाऊन तर तुम्हाला आणखी दुसरे ताप डोक्याला वाढणार आहे. तिथे तुम्हाला बसून मच्छर चावतील, तिथे तुम्हाला घर राहणार नाही, तिथे तुम्हाला थंडी वाजेल, तिथे तुम्हाला भूक लागेल, तिथे तुम्हाला जेवण मिळणार नाही. वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्यांमध्ये तुम्ही आणखी फसाल, ज्या तुम्हाला घरामध्ये सुविधा आहे. घरामध्ये बसून वैराग्य आणणं उलट सोपं आहे त्याच्यापेक्षा जिथे बाहेर पळून जाण्याच्या. तो भगोड़ेपन वैराग्य नहीं है। अपने आप को ऐसे गंदा गंदा रखना, गुरुदेव कहते हैं ना, अपने आप को ऐसे गंदा गंदा रखना, नहाना नहीं, ठीक से बात नहीं करना, ये कोई वैराग्य नहीं है। कपड़े नहीं पहनना, ऐसे ही घूमना इधर उधर, नेकेड घूमना, बोलते ये कोई वैराग्य नहीं है। इसको कृपया गलत फहमी में ना पड़े, ये कोई वैराग्य नहीं। वैराग्य में तो यू आर एंथुजियास्टिक, आप अपने कर्मों में परफेक्ट, आप अपने कर्मों की कंप्लीटली करते हुए 100% करते हुए जो हम लोग अपने कार्य करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत कोई ग्रेट हरी नहीं होती है, कोई क्रेविंग नहीं होती है, फेवरिशनेस नहीं होता है ना, उसके जो कर्म के जो फल मिलने वाले उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती है, वो होती है स्थिति वैराग्य की। तो उनके वैराग्य के ठीक से समझिए, यही पॉइंट हमें सचिन जी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पास अभी भी कुछ समय है, यदि आप अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया आप अनम्यूट कर ले खुद को, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, या अपने मन में कुछ प्रश्न है तो वो पूछ के भी हम लोग क्लेरिफाई कर सकते हैं। बिकॉज ये काफी बार जो निंदा यहाँ पे की गई ना बहुत सारी चीजों की, उससे मन में जरूर प्रश्न आ सकते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न मन में आए हुए तो जरूर क्लेरिफाई कर ले। हाँ वनीता जी बोलिए। अनम्यूट कर ले अपने आप। संन्यास आणि वैराग्य याचा फरक काय? डिफरन्स? हाँ, संन्यास आणि वैराग्य याच्यामध्ये फरक आहे। बेसिकली जे वैराग्य आपल्यामध्ये उत्पन्न होतं त्याच्यानंतर माणूस संन्यास घेतो। आता संन्यास घेणं म्हणजे काय? संन्यासी हा आपल्याकडे अधिकतर जर बघितलं आपलं सगळं मागचं बॅकग्राऊंड जर बघितलं आपण, तर संन्यास अक्सर वो लोग सन्यासी वो लोग कहलाते हैं जिन्होंने शादी वादी नहीं की, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जो लोग डेली रूटीन में घूमते, डेली रूटीन के काम करते हुए नहीं दिखाई देते, जो अक्सर लोग भिक्षुक होते हैं, भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करते, उन लोगों को सन्यासी कहा गया है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं ऐसा सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सन्यासी का जीवन, इवन वैवाहिक जीवन जीते हुए भी वैराग्य का जीवन आप जी सकते हैं। हाँ, एक बात और होती है कि कुछ लोगों को लगता है कि फिर मैं वैवाहिक जीवन जीते समय शायद मुझे मेरी जिंदगी का जो पर्पस है वो देने के लिए शायद मुझे उतना समय ना मिले, शायद मैं अपने बच्चों के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर उनके प्रति ठीक से अपने कर्तव्य को ना निभा पाऊं, बिकॉज मेरा मन कहीं बाहर ही जाएगा, वो सब करने में, सेवा करने में मैं अपने आप को मग्न रखूंगा, अपनी तपश्चर्या करने में अपने आप को लीन रखूंगा, तो मुझे इस जीवन में शादी नहीं करनी। तो उस तरह का भी संन्यास हम लोग देखते हुए लोगों को लेते हुए दिखाई देते हैं। हमने तो अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनका भी एग्जाम्पल है कि कुछ करके उनका शादी हो गया, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और था और उन्हें वो सन्यासी का जीवन जीना था, तो उन्होंने फिर विनती करके अपने आप को अलग रखा वैवाहिक जीवन से। तो यह सब कुछ अपना वैयक्तिक है, इसको पूरा जेनेरिक रूप में ना तोले। हर कोई अपने अपने जीवन जीते हुए सन्यास का अनुभव, वैराग्य का अनुभव जरूर कर सकता है। कहलाते हैं जो शादी नहीं करते वो स्वामी बनते हैं, और जो शादीशुदा होते हैं और वैराग्य में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, वो लोग ऋषि बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि स्वामी ही बनना है, आप ऋषि बन के भी सेवा आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अपने पुराणों में और अपने कहा पे तो कई सारी कहानियां अपने योग वशिष्ठ में भी आएगी कि जो तो शादीशुदा लोग हैं वो भी आत्मज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं और अपने जीवन जीते समय वह इसका अनुभव कर रहे हैं। तो यह कोई आवश्यक नहीं, किसी भी प्रकार से आप शादीशुदा हो या ना हो, आप छोटे बच्चे हो, यौवन में हो, आप की उम्र हो गई है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपके अंदर वैराग्य की उत्पन्न हो। Any time point of time that sprout can
स्प्राउट एनी पॉइंट ऑफ, कभी भी खिल सकता है, कमल कभी भी खिल सकता है, इसीलिए अपना आशा ना छोड़े। कोई गिल्टी मुझे कॉन्शियस। एक बात करनी थी कि हर हर संन्यास लेने वाला सन्यासी के मन में वैराग्य रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन हर वैरागी मन में सन्यासी होता है। सही है, कितनी बढ़िया बात कही ना, बहुत बढ़िया एनॉलॉजी, थँक यू सो मच सचिन। वनिताजी, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं, तुम्हाला आणखी काही विचारायचं आहे? अनम्यूट करून घ्या स्वतःला. मिळालं मिळालं. ओके, धन्यवाद. जय गुरुदेव. हा, जय गुरुदेव. म्हणजे पूछना मराठीत बोलते. मला विचारायचं होतं की जेव्हा आपण हे करतो, जेव्हापासून करायला ऐकायला लागले श्री श्री रविशंकरांना वगैरे, तेव्हा थोडस संसारामधून वैराग्य वाटतं खूप. पण त्यावेळेस मग कसं आपण कंट्रोल करायचं की संसार पण करून वैराग्य कसं मेंटेन करता येईल? तर त्याबद्दल थोडं सांगितलं तर बरं होईल. किती सुंदर प्रश्न विचारला सविता ताईंनी इथे. कसं मी जेव्हापासून मैं आर्ट ऑफ लिविंग में, जब से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई हूँ, तब से मुझे वो मेरा मन जो है थोड़ा वैराग्य की तरफ भाग रहा है। और फिर ऐसा वैराग्य जब मन में उत्पन्न होता है, ऐसा डिस्पैशन मन में आता है, तो मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए, मेरे मेरे कार्य है, मेरी जो जवाबदारियां मुझे है एज अ मदर, एज अ वाइफ ना, एज अ डॉटर, मैं अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ऐसे मैं वैराग्य का जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। बड़ा ही सुंदर प्रश्न यहाँ पे सविता जी ने पूछा है। तो सविता जी, इसका उत्तर गुरुदेव अक्सर देते हुए दिखाई देते हैं कि अपना वैराग्य जो है ना, वो वैराग्य जैसे सचिन जी ने भी कहा ना, कीप इट एट योर माइंड लेवल, डोंट ब्रिंग इट ऑन योर एक्शंस। कर्म को करते समय अपना 100% दें। तो क्या हुआ, आप तो रोटी बनाते समय भी वैराग्य में रह सकते हैं, आप तो काम करते समय भी वैराग्य में रह सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते समय भी वैराग्य में रह सकते हैं, उसको स्कूल में लेते जाते हुए वैराग्य में रख सकते हैं। जब अपने पति के साथ आप आनंद का अनुभव ले रहे, तब भी आप वैराग्य का अनुभव कर सकते हैं। जब आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आपका कुछ भी जो डेली रूटीन हो, वो सारे कर्म करते समय यू गिव योर 100%, बट विदाउट एनी फ्यूरिशनेस अबाउट इट। उसके पीछे मैं, मेरा क्या, मेरा क्या होगा, यह छोड़ के यदि हम लोग अपने कर्मों में अपना पूरा ध्यान डाल देंगे, तो फिर वैराग्य का अनुभव, डिस्पैशन का अनुभव होने लगेगा ना। जो बोलते हैं ना कि भगवत गीता में भी कहते हैं कि कृष्णा बोलते हैं अर्जुना को, यू ड्रॉप द कर्मों के फलों को तुम छोड़ो, उसकी इच्छाओं को, एक्सपेक्टेशन को तुम छोड़ो। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया होगा तो उसमें सबसे पहला ही चीज वही बताया जाता है ना कि इफ यू डू नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस कोर्स, वी स्टिल लाइक टू कंटिन्यू। They ask you to drop your expectations. So if your expectations of this karmas, यदि आपके जो उससे मिलने वाले फलों की चिंता यदि आपसे छूट जाती है, तो फिर क्या करना, तो फिर तो कोई भी काम, वो फर्क क्या पड़ता है, सारे काम एक जैसे ही। कोई काम उच्च या कोई काम नीच रह जाएगा नहीं। नो, आपको उतना ही आनंद आएगा एज अ होम मेकर, आपको उतना ही आनंद आएगा एज अ कॉर्पोरेट लाइफ में, आपको उतना ही आनंद आएगा एज अ टीचर, आपको उतना ही आनंद आएगा एज अ साधक, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए। तो अपने अपने कर्मों को करते रहे, अपनी ड्यूटीज को ना छोड़े, कर्मों को ना छोड़े, उसके फलों की चिंता छोड़ दें। What do you say, सविता जी? आपका एक रामकृष्ण परमहंस का एक एग्जांपल मैं जस्ट देना चाहता हूँ कि अपने घर में काम वाली बाई आती है, ठीक है। तो अभी सपोज एक घर पे, एक बड़े घर पे एक काम वाली बाई काम कर रही है और वहां पे एक छोटा लड़का, छोटा बेबी है, उसको वो परवरिश कर रही है, वो ये कर रही है। तो उसको वो बहुत लालन पालन से उसको खाना खिलाती है, ये करती है, लेकिन उसके माइंड में रहता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर किधर दूसरी जगह है। तो वो उसका सब करती है, लेकिन माइंड में वो अटैच नहीं होती है। तो वैसे ही अपने को काम करना है बस। बहुत ही बढ़िया बताया कि सचिन जी ने जो दिख रहा है, ये मेरा घर नहीं है, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये तो मिथ्या संसार है। मेरा घर मेरे अंदर उस शांत परमानंद स्वरूप में ही है, बाहर की दुनिया तो मेरा घर नहीं है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी। व्हाट डू यू से सविता जी? अपने आप को अनम्यूट कर ले। ओके, ठीक है। हाँ,
अपने पास और 4 मिनट है, यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, या अपने आप को व्यक्त होना है तो भी कर सकते हैं। अपने साथ कुसुम ताई भी है। कुसुम ताई ने कम से कम 9 बार 9 बार इसका ये दिया हुआ है, डिस्कोर्स ऑन भगवद गीता। कुसुम ताई, वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स टू द ऑडियंस? ये एक हे सांगते, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकांनो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. तर आपल्याकडून पण कोणी दुःखी होऊ नये, कष्टी होऊ नये, किंवा आपण पण कुणाकडून दुःखी कष्टी न होऊ. तर ह्याच्यात पण पुष्कळ सारं वैराग्य येतं, म्हणजे आपण पालन करू शकतो. आणि दुःख सुख किंवा हर्ष नाही दुःख, तरी पण दोन्ही याच्यात सम राहिलं तरी पण बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. असं कुसुमताईंच्या वाणीमधूनच त्यांचं ज्ञान, त्यांचं वैराग्याचं जे जीवन, संन्यासाचं जीवन जे जगत आहेत, आणि तोच अनुभव, तोच आपला आनंद सगळ्यांसोबत शेअर करत आहे त्यांच्या वाणीमधनं आपल्याला हे प्रकर्षाने जाणवतं. आणि कर्मफल त्याग जो आहे, तर म्हणजे कर्म तर करीत राहायचं, पण त्याचं हेच आपल्याला फल मिळावं किंवा असंच व्हावं माझ्या मनासारखं. दुःखी जेव्हा होतो आपण की केव्हा होतो की मनासारखं फल नाही मिळत, तर ते सोडून द्यायचं, फलाची इच्छाच नाही, समर्पण. तुम्ही जो लगी अच्छा वही मेरी अच्छी इच्छा. असं केलं तर तर हे त्या गोष्टी आहे ज्याच्यापासून आपल्या मनामध्ये नक्की वैराग्य उत्पन्न होण्यामध्ये हातभार लागतो, मदत मिळते. कुसुमताई, धन्यवाद तुमचा अनुभव शेअर केल्याबद्दल. अनघा जी कुछ कहना चाहते हैं? हा, असं वैराग्य मनात ठेवून वागणं फार कठीण आहे. नाही तर गोरा कुंभार व्हायचा. गोरा कुंभाराचं तर मुलंच पायाखाली आलं आणि लक्ष विठ्ठलाकडे होतं. असं होऊ नये ही देवाला प्रार्थना करायला पाहिजे. अगदी बरोबर की आपल्या हातातनं, म्हणूनच आपण आपल्या प्रत्येकची सेशन कशापासून सुरुवात करतो? गुरुची ईश्वरासमोर प्रार्थना करून की बाबा रे, माझ्या तोंडातनं असे काही शब्द नाही निघाले पाहिजे जेणेकरून कोणाला दुःख होईल. बाबा रे, माझ्या वाणीतून असेच शब्द निघाले पाहिजे जेणेकरून लोकांना एक अपलिफ्ट फील वाटेल. माझे कर्म आणि माझे विचार, माझे स्मृती आणि माझा विवेक आणि थोडा अहमचा भाव जो बाकी असेल तो सुद्धा त्यांच्या प्रेरणेतूनच उत्पन्न हो, अशी प्रार्थना करूनच प्रत्येक कार्याला सुरुवात करतो. म्हणून समर्पण असतं तेव्हा चान्सेस खूप कमी होतात ऍक्च्युली आपल्या आणि थोडाफार झाला तर सो व्हॉट, सो हम तो है, सो हम करो, सो व्हॉट बोलो, आगे बढ़ो. व्हाट डू यू से? रमेश जी इथे विचारत आहेत, लोभ मोह यातून मुक्त होण्यासाठी काय करावं? तर रमेशजी, गुरुदेव नेहमी हा प्रश्नाचं उत्तर अशा पद्धतीने देतात की बघा, लोभ मोह क्रोध जेलसी जर हे बघितलं तर आपल्या अस्तित्वाच्या स्थानामध्ये इनबिल्ट आहे. अगदी तुम्ही लहानसा मुलगा आहे, त्या लहानसा मुलाच्या हातून तुम्ही एखादा पेन आहे आणि तो पेन तुमच्या हातातून हिसकावून घ्या आणि बघा मग तो कसा आकांत करतो, कसा तो रडतो, कसे पाय आदळपट करतो. मग ही जर गोष्ट आपल्या सिस्टम मध्ये इतकी इनबिल्ट आहे, तर याच्यापासून मुक्ती मी कसं पाहू? अगदी प्रश्न रास्त है. आपका प्रश्न जो है बहुत ही बिल्कुल एप्ट है कि कैसे मैं ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इनसे मैं छुटकारा पाऊं. बिकॉज काम नहीं रहेगा तो फिर तो ना आप रहेंगे ना मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे. वो तो हम लोग तो किसी ने किस दिन काम किया उसी वजह से तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. एक छोटे बच्चे के हाथ से आप कुछ छीन लो तो उसको क्रोध आ जाता है. तो बोलते ये तो सिस्टम में इनबिल्ट है, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं? इट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी एप्ट क्वेश्चन. गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस यू नीड टू इंक्रीज द एक्सपांड. यू एक्सपांड योर लोभ. लोभ करना है क्या आपको? तो बोलते ऐसी चीज का लोभ करो कि अरे इस दुनिया में सब लोग सुखी हो जाए, सबके जीवन में आनंद आ जाए. इस चीज का लोभ करो. आपको किसी चीज का मोह होता है तो सबके जीवन में वो स्माइल आ जाए, सबके जीवन में योग वशिष्ठ पहुंच जाए.
इसकी कंपटीशन करो, इसके पीछे भागो, इसका मोह करो। यदि आपको गुस्सा आता है तो जीवन में जो बाहर की जो घटनाएं घट रही है, बोलते जो अन्याय होते हुए दिखाई देता है, उसके प्रति गुस्सा हो जाओ, उसके प्रति गुस्सा हो। expand your horizon. You want to take a responsibility, you want to have something, some craving, बोलते have some craving कि मेरे देश का सब कुछ बड़ा हो जाए, अच्छा हो जाए। बोलते expand your these काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इसका दायरा क्या करो, बढ़ा दो। जैसे ही आप इसका दायरा बढ़ाते हुए दिखते हैं, वैसे ही उससे होने वाले दुख आपको मिलते नहीं है, उन दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। व्हाट डू यू से? क्या कहते हैं रमेश जी? प्रयोग करने की बात है, करके देखिए, जरूर अनुभव हो जाए। यू एक्सपांड द होराइजन ऑफ योर ऑल दिस रिपल्स। आज का यह अपना समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल फिर से मिलेंगे, कल फिर से इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। स्वल्प विराम लेते हैं ताकि हम लोग पुनः अपना इसको क्रमशः कल कर सके। आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने सभी जो अपने मेंटर्स है, सचिन जी, संगीता जी, कुसुम ताई, ऑल अवर ऑडियंस, इन सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय गुरुदेव। गुरुदेव।